Hello students, welcome to our APS classes, and as all we know that this is our foundation course especially for the students from 9th to 12th. And dear students, in our today's live lecture we will discuss about the syllabus for the 12th class regarding the second term 2022 for the subjects such as mathematics, English, chemistry as well as physics. So let us start with our live video regarding the syllabus as well as distribution of marks regarding the subjects such as mathematics, English, chemistry as well as physics for the second term 2022. So beta, let us start with our first subject for the 12th class regarding the second term examination 2022, that is your English subject. कौन सा सब्जेक्ट है बेटे आपका? इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश, ठीक है, फॉर द सेशन 2021-22. Time that is to be allotted for the students for the English subject, that is of 3 hours. Maximum marks regarding your subject is 50 marks. And your section is to be divided into different types of the sections for the English subject. First is your reading section. It is your reading section. सबसे पहला जो सेक्शन है बेटे आपका वो है रीडिंग सेक्शन का. रीडिंग सेक्शन में आपके दो पार्ट्स रहेंगे. One is the unseen passage and the second one is the note making. रीडिंग सेक्शन के बाद सेकंड जो आपका पार्ट आएगा that is creative writing skills. It is your creative writing skills. Creative writing skills में बेटे आपके 4 पार्ट्स रहेंगे इसमें. And the 4 parts are, one is the notice writing and classified advertisement. Second one is the report writing. Third one is letter as well as application writing, and the fourth one is the article writing. So in the creative writing skills, there are 4 sections: A, B, C, and D. A is your notice writing and classified advertisement. Second one is report writing. Third one is letter as well as application writing, and the fourth one is article writing. Now shift to the third part, and your third part is your literature. It is your literature. In literature, there are 2 books, book 1 and book 2. Book 1 is your Flamingo, that is prose. And in Flamingo, first is the Red Trap and the second one is the Indigo. And in your poetry part, first is Keeping Quiet, second the Thing of Beauty, and the third is Aunt Jennifer's Tigers. And in your second book, that is your Vistas, that is your supplementary reader. और supplementary reader में जो है बेटा that is on the face of it, and second one is the memories of the childhood. तो बेटे यहाँ पर आपकी literature से related 2 books, one is Flamingo prose and the second one is the Vistas, that is your supplementary reader, and in this also there is poetry. So this is the syllabus for the second term examination regarding the English subject, and it is divided into 3 parts. One is the reading section, second one is the creating writing skills, third one is the literature. And in literature your book is divided into 2 parts, book 1 and book 2. Book 1 is your Flamingo, second one is your Vistas, that is your supplementary reader. After that, now what is the paper pattern of the English subject? पेपर पैटर्न किस तरह का रहेगा आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का? सबसे पहले बेटे आपका टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके नेम ऑफ द लेसन्स कौन कौन से रहेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, एंड व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स रिगार्डिंग योर टॉपिक. वन इज द रीडिंग सेक्शन. पहला जो है आपका बेटे दैट इज योर रीडिंग सेक्शन. टॉपिक जो रहेगा आपका दैट इज योर रीडिंग सेक्शन. एंड इन रीडिंग सेक्शन the name of the lesson, reading section में जो आपके name of the lessons रहेंगे, one is the unseen passage and the second one is the note making and the summary. Unseen passage में जो types of questions रहेंगे बेटे वो आपके रहेंगे objective questions, and in note making and summary the questions, the type of the questions are of subjective type.
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज ऑफ 7 मार्क्स एंड इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ 5 मार्क्स. नेक्स्ट बेटा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स. In creative writing skills, this is the second topic for the English subject, and in creative writing skills, the name of the lessons are that is notice writing and classified as well as advertisement. उसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही रहेंगे, आपके नोटिस राइटिंग और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं रहेंगे. इसमें जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे दैट इज आर ऑफ सब्जेक्टिव टाइप, और इसमें टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा दैट इज ऑफ 3 मार्क्स. सेकेंड वन इज रिपोर्ट राइटिंग. ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में है. रिपोर्ट राइटिंग जो है वो भी आपकी बेटा सब्जेक्टिव टाइप की होगी. इसमें सब्जेक्टिव जो है आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं रहेंगे रिपोर्ट राइटिंग में. एंड अगेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज ऑफ 4 मार्क्स. रिपोर्ट राइटिंग जो रहेगी आपकी दैट इज ऑफ 4 मार्क्स. थर्ड वन इज लेटर एप्लीकेशन राइटिंग. लेटर एप्लीकेशन भी आपकी सब्जेक्टिव है बेटे. इट इज अगेन सब्जेक्टिव टाइप एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रिगार्डिंग द लेटर एज वेल एज एप्लीकेशन राइटिंग इज ऑफ 4 मार्क्स. लास्ट जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में जो लास्ट आपका क्वेश्चन रहेगा बेटे दैट इज योर आर्टिकल राइटिंग. आर्टिकल राइटिंग का रहेगा एंड आर्टिकल राइटिंग इज अगेन सब्जेक्टिव टाइप. ये भी आपका सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज ऑफ 4 मार्क्स. तो जो रीडिंग सेक्शन है इसमें जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है दैट इज ऑफ 12 मार्क्स. एंड इन क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज 15 मार्क्स. नेक्स्ट बेटा लिटरेचर है आपका. नेक्स्ट इज योर लिटरेचर. 2 बुक्स में डिवाइड है आपका लिटरेचर, बुक 1 एंड बुक 2. बुक 1 दैट इज योर फ्लैमिंगो. फ्लैमिंगो में बेटे जो आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे दैट इज योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वो 5 मार्क्स के रहेंगे. बुक 1 दैट इज योर फ्लेमिंग बुक एंड इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं दैट आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग दीस क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स. एसे टाइप क्वेश्चंस भी रहेंगे इसमें एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसे टाइप क्वेश्चंस मार्क्स दैट इज ऑफ 5 मार्क्स. नेक्स्ट इज द पोएट्री पार्ट एंड इन पोएट्री ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप. इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज ऑफ 3 marks. After the first book, second book is your vistas, that is a supplementary reader. Supplementary reader. And in supplementary reader, again there are short questions, that is your objective questions, and these objective questions are of 5 marks. So the distribution of marks is of 5 marks. And essay type question again is of 5 marks. So here this is the paper pattern of the English subject for the class 12, and it is divided into 3 sections: section A, section B, section C. Section A is your reading section जिसमें आपके unseen passage as well as note making and summary रहेगी. unseen passage जो है वो आपके उसमें जो objective questions होंगे वो आपके 7 marks के रहेंगे and notice making as well as summary जो होगी that is of subjective type and the distribution of marks is of 5 marks. सेकेंड इसका सेक्शन जो रहेगा सेक्शन बी दैट इज क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का है. उसमें जो आपके टॉपिक्स रहेंगे बेटे नोटिस राइटिंग एंड क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा. रिपोर्ट राइटिंग है वो भी आपकी सब्जेक्टिव रहेगी. अगेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज ऑफ 4 मार्क्स. थर्ड क्वेश्चन जो इसका रहेगा थर्ड पार्ट जो रहेगा दैट इज लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग, दैट इज अगेन सब्जेक्टिव टाइप and the distribution of marks is of 4 marks. Last is your article writing. It is again subjective type and the distribution of marks is 4 marks. After the creative writing skills, your section C is your literature part. And in literature, it is divided into 2 books, that is book 1 and book 2. Book 1 is your flamingo. उसमें short questions रहेंगे आपके objective questions 5 marks के और essay type question जो रहेगा एक that is of 5 marks. Poetry में objective questions रहेंगे 3 मार्क्स के. बुक 2 जो है आपकी दैट इज विस्टार्स बुक है सेकंड बुक आपकी. उसमें भी बेटे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 5 मार्क्स पे और ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो होंगे दैट इज ऑफ 5 मार्क्स. नेक्स्ट इज योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट. नेक्स्ट इज योर
केमिस्ट्री सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा, कहां तक आपका फर्स्ट टर्म में हो चुका था, और सेकंड टर्म के लिए जो आपका सिलेबस है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का वो कहां से कहां तक होगा। तो जो फर्स्ट टर्म में जो सिलेबस था बेटा वो आपका था चैप्टर नंबर 1 to 7 जो आपके टर्म 1 में हो चुके हैं। अब टर्म 2 के लिए जो आपके चैप्टर्स हैं बेटे वो आपके शुरू कहां से होंगे, चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 16 तक। चैप्टर 8 है आपका डी एंड एफ ब्लॉक्स का, और जो 16 चैप्टर है आपका दैट इज योर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो टोटल इस तरह से बेटे आपके 9 चैप्टर्स बन जाते हैं जो कि सेकंड टर्म के लिए आपके इंक्लूड हैं, चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक। टोटल कितने चैप्टर्स हो गए, 9 चैप्टर्स हो गए। इसमें आपका टाइम अलॉटेड जो रहेगा इस पेपर में दैट इज ऑफ 3 आवर्स, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है बेटे दैट इज ऑफ 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का रहेगा। टोटल चैप्टर्स आगे बेटे पहला आपका जो सिलेबस है सेकेंड टर्म का, टोटल चैप्टर्स कितने हैं, चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक। टोटल कितने चैप्टर्स हो गए बेटे आपके, 9 चैप्टर्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, 50 मार्क्स। ड्यूरेशन क्या रहेगा टाइम का, दैट इज ऑफ 3 आवर्स। टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे बेटे आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 33 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस जो है आपके केमिस्ट्री पार्ट में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में वो कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 33 क्वेश्चंस। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक टोटल 20 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो कैरी करेगा 1 मार्क्स को। हर एक क्वेश्चन का कितने मार्क्स होंगे, हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर बेटे 21 से लेके 29 तक, 21 to 29, 21 to 29 जो है बेटे आपके 21 to 29 ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। 1 से लेके 20 तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और 21 से लेके आपके 29 तक जो है वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स को कैरी करेगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। नाउ आफ्टर 21 क्वेश्चन नंबर 30 टू क्वेश्चन नंबर 33, पहले कहा था मैंने टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में वो रहेंगे 33 क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 33 तक है दे आर अगेन ऑफ सब्जेक्टिव टाइप, ये भी आपके सब्जेक्टिव टाइप के हैं। एंड ईच क्वेश्चन कैरीज कितने क्वेश्चन मार्क्स कैरी करेगा वो, 3 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। तो इस तरह से बेटे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स को कैरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 तक आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 30 टू क्वेश्चन नंबर 33 कैरीज 3 मार्क्स, एंड these are again subjective type questions. So here this is the syllabus for the second term examination regarding the chemistry subject. And chapter wise अब हम करेंगे chapter wise distribution of marks. चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है वो किस तरह से रहेगा। तो हियर दिस इज द चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। हमने कहा था आपका चैप्टर नंबर 8 से शुरू हो रहे हैं, और चैप्टर नंबर 8 से शुरू होकर खत्म हो रहे हैं चैप्टर नंबर 16 पर। चैप्टर नंबर 8 जो है बेटे आपका दैट इज योर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर नंबर 8 का नाम जो है दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें जो बेटे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे वो 2 क्वेश्चन रहेंगे। 2 मार्क्स का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे इसमें वो 1 क्वेश्चन रहेगा। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे आपके डी एंड एफ ब्लॉक में से, 3 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका। 3 मार्क्स के जो होंगे वो उसमें 1 क्वेश्चन होगा। तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने होंगे बेटे, 3 क्वेश्चन होंगे। और टोटल वेटेज जो है आपकी चैप्टर नंबर 8 की डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के दैट इज ऑफ 5 मार्क्स, क्योंकि 2 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स का है, तो 3 + 2 5। So here the weightage of the chapter number 8 that is D and F block elements is of 5 marks. Next is your chapter number 9. Chapter number 9 is your coordination compounds. Chapter number 9 जो है बेटे आपका that is your coordination compounds.
अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बेटे अगेन देयर आर थ्री क्वेश्चंस, देयर आर थ्री क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। 1 मार्क्स के जो रहेंगे क्वेश्चन वो 3 क्वेश्चंस रहेंगे। 2 मार्क्स के इसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे। 3 मार्क्स का इसमें से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से। और टोटल क्वेश्चंस आपके कितने होंगे? 3 + 2 5। 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स। 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है? 2, तो 2 + 2 4, 4 + 3 7। तो टोटल वेटेज जो रहेगी मार्क्स की वो 7 मार्क्स की रहेगी और टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 3 + 2 कितने हो गए? 5। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से आपके टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन। नाउ शिफ्ट टू द चैप्टर नंबर 10 एंड योर चैप्टर नंबर 10 इज हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। 1 मार्क्स के जो इसमें से क्वेश्चंस रहेंगे बेटे वो 2 क्वेश्चंस रहेंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। 3 मार्क्स के अगेन 1 क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चंस हो गए 2 + 1 3 + 1 4। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स हो गए। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 2 + 2 4। 3 मार्क्स के आगे 1 क्वेश्चन है तो 4 + 3 कितने हो गए? 7। सो टोटल वेटेज ऑफ मार्क्स regarding the chapter that is your hello alkenes and hello arenes is 7 marks. Total questions are 4 questions from this chapter, hello alkenes and hello arenes. Now shift to the chapter number 11 and your chapter number 11 is alcohols, phenols and ethers. This is the chapter number 11. And beta in this chapter 1 marks के जो questions हैं वो आपके 3 questions हैं। 2 marks के 2 questions। 3 मार्क्स का इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 3 + 2 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स में से। डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेज ऑफ मार्क्स जो रहेगी 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है 3, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है तो कितने हो गए? 4, 4 + 3 7। सो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स में से भी आपका जो टोटल वेटेज है मार्क्स की दैट इज ऑफ 7 मार्क्स। नाउ शिफ्ट टू द चैप्टर नंबर 12 and your chapter number 12 is aldehydes, ketones and carboxylic acid. गुड इवनिंग बेटे, जो भी आप जुड़े हैं बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा लाइव वीडियो का जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम 12th क्लास का जो है सेकेंड टर्म का सिलेबस एज वेल एज जो उसका चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि कौन से चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का आएगा और हर एक चैप्टर जो है उसमें से 1 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा और 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। सो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 जो है बेटा दैट इज योर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर में से बेटे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे आपके वो रहेंगे 3 क्वेश्चंस। 2 मार्क्स का इसमें से 1 क्वेश्चन होगा। 3 मार्क्स का उसमें से अगेन 1 क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चंस जो बनेंगे बेटे वो आपके 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से। तो आपका जो 1 मार्क्स के हैं बेटे उसमें 3 क्वेश्चंस हैं तो 3 मार्क्स हो गए। 2 मार्क्स का उसमें 1 क्वेश्चन है तो 3 + 2 5। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 5 + 3 8। सो टोटल वेटेज ऑफ मार्क्स इज ऑफ 8 मार्क्स। Next is your chapter number 13 and your chapter number 13 is amines. Amines में बेटे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे। 2 मार्क्स का इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चंस हो गए आपके 3 + 1 4। टोटल आपके अमाइंस में से जो क्वेश्चंस आएंगे बेटे चैप्टर में से वो आएंगे आपके 4 क्वेश्चन। वेटेज ऑफ मार्क्स रहेगी 3 और 3, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन आएगा आपका अमाइंस में से। 3 क्वेश्चन जो होंगे आपके 1 मार्क्स के हैं तो 3 + 3 कितने हो गए बेटे 6। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 आपका बेटे चैप्टर नंबर 14 जो है दैट इज योर बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने आएंगे 2 क्वेश्चंस आएंगे। 2 मार्क्स का जो होगा वो 1 क्वेश्चन होगा। 3 मार्क्स का इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है तो टोटल 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है तो 2 हो गए। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 2 + 2 4 और टोटल क्वेश्चंस कितने बन गए बेटे इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस हो गए आपके। नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 15 इज योर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में से 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे बेटे वो आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे। 2 मार्क्स का इसमें से एक क्वेश्चन होगा। 3 मार्क्स का इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए आपके
3 क्वेश्चन हो गए, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेज ऑफ मार्क्स रहेगा 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, सॉरी 2 मार्क्स के आपका एक ही क्वेश्चन है और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, तो टोटल वेटेज जो रहेगी आपकी 4 मार्क्स की, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 और 2 आपके 1 मार्क्स के, तो 2 + 2 कितने हो गए 4। लास्ट चैप्टर जो है बेटे आपका दैट इज योर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से बेटे आपके 1 नंबर का कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आएगा। 2 मार्क्स का इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, ना तो इसमें से कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ना ही इसमें से कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, वो आएगा आपका 2 मार्क्स का। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से 1 क्वेश्चन, और जो वेटेज है दैट इज ऑफ 2 मार्क्स। तो जो बेटे जो 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस बने वो कितने बनेंगे, देखो 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20। तो ये टोटल आपके 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो गए 20 क्वेश्चन हो गए। अब 2 मार्क्स के देखिए बेटे हम, तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9। तो आपके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बेटे वो आएंगे आपके टोटल 9 मार्क्स के। 3 क्वेश्चन जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटे 1 2 3 4, तो आपके 3 मार्क्स के जो होंगे वो 4 मार्क्स के आएंगे। जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके कितने होंगे 4 मार्क्स, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए बेटे आपके 33, 20 + 9 29, 9 + 4 कितने हो गए बेटे आपके 33। तो टोटल कितने क्वेश्चंस बन गए आपके 33। और ये बेटे आपकी वेटेज है जो कि कितने मार्क्स की है 50 मार्क्स की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके 20 आ गए, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके 9 आ गए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 4 आ गए। तो अब आपको पता चल चुका है कि आपका पेपर जो है वो 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के होंगे, इसमें 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका। तो जो आपके 1 मार्क्स के हैं वो 20 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के जो है वो आपके 9 क्वेश्चन रहेंगे, और जो 3 मार्क्स के हैं वो आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल बेटे इस तरह से आपके कितने क्वेश्चन होंगे 33 क्वेश्चन होंगे। वेटेज जो होगी आपकी मार्क्स की वो कितनी होगी 50 की। 5 + 7, 7 + 7, 7 8 6 4 4 and 2। तो इस तरह से बेटे दिस इज द चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रिगार्डिंग योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। नाउ शिफ्ट टू द सिलेबस फॉर द क्लास 12 रिगार्डिंग द सब्जेक्ट दैट इज योर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा आपका, और उसमें चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो वो किस तरह से रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। टाइम अलॉटेड for the mathematics subject is 3 hours, maximum marks that is of 50 marks। इसमें बेटे आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 जो होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कैरीज 1 मार्क्स, 1 मार्क्स के रहेंगे, और वो होंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 26, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपके टोटल 28 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 28 क्वेश्चंस, ठीक है बेटे। टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वो कितने रहेंगे 28, जबकि आपकी केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हमने कहा कि वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स को कैरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक जो होंगे वो आपके रहेंगे 3 मार्क्स के। 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आफ्टर 1 के बाद सीधे कितने मार्क्स के 3 मार्क्स के। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28, ये 2 क्वेश्चन जो होंगे वो कैरीज करेंगे आपके 6 मार्क्स को, 6 मार्क्स के होंगे 2 क्वेश्चन आपके, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 1 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 21 to 26 3 मार्क्स, एंड क्वेश्चन नंबर 27 to 28 6 मार्क्स। So this is the pattern of the question paper, ये आपका पैटर्न रहेगा क्वेश्चन पेपर का। Now we shift to the chapter wise distribution of marks। अब chapter wise distribution of marks क्या रहेगा आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। कितने यूनिट्स है बेटे टोटल आपके पास 4 यूनिट्स है आपके पास, टोटल 4 यूनिट्स। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बेटे कितने टोटल यूनिट्स है आपके 4 यूनिट्स है। उन 4 यूनिट्स में फिर अब कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे आपके, और उन चैप्टर्स के नाम क्या रहेंगे, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, और टोटल मार्क्स जो होंगे वो क्या बनेंगे आपके।
सबसे पहले हम लेंगे यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 है दैट इज कैलकुलस। इट इज योर यूनिट नंबर 1। अब यूनिट नंबर 1 में जो बेटे आपके चैप्टर्स आ रहे हैं वो आ रहा है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। तो यूनिट 1 में आपके कितने चैप्टर्स आए थे? चैप्टर कहां से शुरू हो रहे हैं? चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। और आपका यूनिट 1 जो है दैट इज कैलकुलस, चैप्टर नंबर 9 तक आएंगे आपके यूनिट 1 में। चैप्टर नंबर 6 है बेटे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इट इज योर चैप्टर नंबर 6। इसमें जो मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा बेटे, इसमें 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्लस एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में से बेटे आपके टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए बेटे? 4 मार्क्स, जिसमें सिर्फ आपकी 6.3 ही एक्सरसाइज है, ओनली 6.3। ये ध्यान रखना है कि चैप्टर नंबर 6 में आपकी एक्सरसाइज 6.3 ओनली ही इंक्लूड है। चैप्टर नंबर 7 जो है बेटे दैट इज योर इंटीग्रल्स। चैप्टर नंबर 7 जो है आपका दैट इज इंटीग्रल्स। इसमें बेटे देखो अब क्या क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 क्वेश्चंस इसमें से एक नंबर के आपके रहेंगे, प्लस एक क्वेश्चन रहेगा आपका 3 मार्क्स का। तो सबसे ज्यादा जो आपका बेटे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो कवर हो रहा है वो हो रहा है आपके चैप्टर नंबर 7 में से। और चैप्टर नंबर 7 दैट मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है आपका इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है इसमें 11 मार्क्स का। ठीक है, 8 मार्क्स के इसमें टोटल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। 8 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे 8 मार्क्स के, प्लस एक क्वेश्चन इसमें रहेगा आपका 3 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए? 11 मार्क्स। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 जो है बेटे दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इट इज द चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और इसमें कॉमन 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, प्लस एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। टोटल कितने हो गए? 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, प्लस एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो रहेंगे इसमें वो रहेंगे आपके 4 मार्क्स के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से। लास्ट आपका चैप्टर नंबर 9 है यूनिट 1 का, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में से आपके टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे 3, प्लस एक क्वेश्चन रहेगा आपका 3 मार्क्स का। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होंगे वो हो जाएंगे आपके 6 मार्क्स। तो बेटे देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन जो होगा दैट इज 1 मार्क्स का, एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन रहेगा आपका 3 मार्क्स का। गुड इवनिंग बेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका टोटल 4 मार्क्स हो गए। इसमें सिर्फ आपकी एक्सरसाइज 6.3 ही इंक्लूड करेगी। चैप्टर नंबर 7 जो है वो इंटीग्रल्स का है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका इसी चैप्टर में से है। टोटल इसमें से 8 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। टोटल जो वेटेज बनेगी बेटे मार्क्स के दैट इज ऑफ 11 मार्क्स। चैप्टर नंबर आपका नेक्स्ट 8 जो है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें इसे एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का, और एक रहेगा आपका 3 मार्क्स का। टोटल मार्क्स रहेंगे 4 मार्क्स। चैप्टर नंबर 9 है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसमें से 3 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होगा आपका 6 मार्क्स का। नाउ वी शिफ्ट टू द सेकंड यूनिट, एंड योर सेकंड यूनिट इज वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D। वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D, दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसमें आपकी यूनिट सेकंड का जो नाम है आपका वो है आपका वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D, दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब इसमें कौन सा चैप्टर इंक्लूड होगा बेटे? यूनिट 2 में। यूनिट 2 में जो है आपका चैप्टर नंबर 10 जो है वो इंक्लूड हो रहा है। चैनल पर बेटे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलती रहे। तो बेटे आपका जो यूनिट 2 है दैट इज वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का है। इसमें आपका चैप्टर नंबर 10 रहेगा, एंड योर चैप्टर नंबर 10 इज वेक्टर्स। वेक्टर्स आपका चैप्टर नंबर 10।
इसमें से जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा बेटे आपके 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे प्लस एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 3 आपके इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एंड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो रहेगा दैट इज ऑफ 6 मार्क्स। नेक्स्ट इज योर यूनिट 3 एंड योर यूनिट 3 इज लीनियर प्रोग्रामिंग। यूनिट 3 and your unit 3 is your linear programming। linear programming ठीक है बेटे। इसमें आपका जो चैप्टर रहेगा दैट इज योर चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 जो है दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है बेटे, इसमें से जो टोटल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो आपका 6 मार्क्स का रहेगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 6 मार्क्स का है और टोटल मार्क्स कितने बनेंगे इसमें से 6 मार्क्स बनेंगे। लास्ट इज योर यूनिट 4 एंड योर यूनिट 4 इज कौन सा रहेगा बेटे? यूनिट 4 दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इट इज योर यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका आएगा चैप्टर नंबर 13 दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। और इसमें बेटे टोटल आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के प्लस एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स का रहेगा। 3 + 2 5। इस तरह से बेटे ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चैप्टर के नेम बता दिया गया आपको, चैप्टर का नंबर बता दिया गया है और टोटल कितने यूनिट्स हैं आपके मैथमेटिक्स जिसके अंदर आपके 4 चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। यूनिट 2 जो है वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है जिसमें आपके जो कवर कर रहा है वो चैप्टर नंबर 10 कवर कर रहा है दैट इज योर वेक्टर्स। ठीक है, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को भी कवर कर रहा है। 2 चैप्टर्स को कवर कर रहा है, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और जो यूनिट 3 है दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग और जो चैप्टर का नेम है वो आपका क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। यूनिट 4 जो है बेटा वो आपका प्रोबेबिलिटी का है और वो आपका चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर का नेम जो है वो आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से आपका आएगा 5 मार्क्स का, लीनियर प्रोग्रामिंग में से आएगा आपका 6 मार्क्स का, प्लस आपका वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में से जो आएगा वो आएगा आपका टोटल वेक्टर्स में से आएगा 6 मार्क्स का, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में से आएगा 8 मार्क्स का। उसके बाद आपका जो इंटीग्रल्स जो है आपके वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा मार्क्स को कवर कर रहा है, 11 मार्क्स को कवर कर रहा है। और जो आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है वो 4 मार्क्स को, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कवर कर रहा है 6 मार्क्स को। और जो सबसे पहला चैप्टर आपका 6th चैप्टर है यूनिट 1 का वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, उसमें से आपका टोटल रहेगा 4 मार्क्स का। तो इस तरह से बेटे ये चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है रिगार्डिंग योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो बेटे हमने इंग्लिश का भी डिस्कस कर लिया, केमिस्ट्री का भी कर लिया, उसके बाद मैथमेटिक्स का भी कर लिया एंड द लास्ट वन इज योर फिजिक्स सब्जेक्ट। बायो का हम कल के लाइव वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बायो का पेपर का पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और हर एक चैप्टर में से 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने रहेंगे, 2 के कितने रहेंगे और 3 के कितने रहेंगे। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपके 1 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं और 2 क्वेश्चन होंगे वो आपके 4 से लेके यूनिट 10 तक। यूनिट 3 तक ऑलरेडी आपके टर्म 1 में कवर हो चुके हैं। अब जो सेकेंड टर्म के लिए जो आपका सिलेबस है बेटे दैट इज फ्रॉम यूनिट 4 टू यूनिट 10। 4 यूनिट से लेके यूनिट 10 तक जो है वो आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस रहेगा। तो यूनिट 4 में जो आपके चैप्टर्स आएंगे बेटे, और यूनिट 4 का नाम जो है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। दिस इज योर यूनिट 4 एंड द नेम ऑफ द यूनिट 4 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। And under this unit there are 2 chapters, chapter 6 and chapter 7. Chapter 6 is your electromagnetic induction and chapter 7 is your alternating currents. There are 2 chapters under this unit, that is your unit 4 and the name of the unit is electromagnetic induction and alternating current. And the total marks assigned for this unit that is 9 marks. Second, your unit number 5 and your unit 5 is electromagnetic waves. Unit 5 में जो आपका नेम है यूनिट का that is electromagnetic waves and under this unit there is only one chapter that is chapter number 8 and the name of the chapter is electromagnetic waves. Marks assigned regarding this unit that is of 4 marks. Next is your unit 6 and unit 6 is your optics unit and under this unit there are 2 chapters, chapter number 9 and chapter number 10. Chapter number 9 is ray optics and optical instruments and chapter number 10 is wave optics. That means under this unit, that is your unit 6,
and the name of the unit is optics. And under optics, there are two chapters, chapter number 9 and chapter number 10. Chapter number 9 is your ray optics and optical instruments. And your chapter number 10 is wave optics. And the marks assigned for this unit, that is of 14 marks. सबसे ज्यादा आपके marks जो cover कर रहा है, that is your unit 6 and the name of the unit is optics. Next is your unit number 7, and your unit 7 is dual nature of radiation and matter. It is your unit 7, and under this unit there is only one chapter, and the name of the chapter is chapter 11, and the name of the chapter is dual nature of radiation and matter. And marks assigned for this unit is 5 marks. Next is your unit 8, and your unit 8 is atoms and nuclei. And there are two chapters under this unit, chapter number 12 and chapter number 13. Chapter number 12 is your atoms, and your chapter number 13 is nuclei. That means there are two chapters under the unit 8, that is the atoms and the nuclei. And your chapter number 12 is atoms and chapter number 13 is nuclei. And the total marks assigned for this unit is of 6 marks. 6 marks. Next is your unit 9, and your unit 9 is electronic devices. And in this unit, there is only one chapter, that is the chapter number 14, and the name of the chapter is semiconductor devices and digital circuits. And here the weightage of marks or the marks assigned for this unit, that is electronic devices, is of 7 marks. And last is your unit 10, and your unit 10 is communication systems. And under the communication systems, only one chapter is there, that is your chapter number 15, and the name of the chapter is communication systems, and the marks assigned for this unit or this chapter is 5 marks. So here the total marks for these 10 units, 6 units, क्योंकि unit 4 से लेकर आपकी खत्म हो रही यूनिट 10 तक, that is of 50 marks. So here बेटा the theory paper will be of 50 marks in the term 2. जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको कि जो theory paper रहेगा आपका, the theory paper will be of 50 marks in the term 2, and the tentative weightage, that is of 60%, will be assigned to it while compiling the final result of term 2. नेक्स्ट बेटा नेम ऑफ द यूनिट्स, इसमें आपका जो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो किस तरह से रहेगा, कौन से चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का आएगा. सो दिस इज नेम ऑफ यूनिट. नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे उस यूनिट में से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के कितने रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के कितने रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 मार्क्स के कितने रहेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 मार्क्स के कितने रहेंगे. दैट मींस आपके फिजिक्स सब्जेक्ट में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का रहेगा, दैट इज 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एंड 4 मार्क्स का. ये आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा फिजिक्स सब्जेक्ट में. तो बेटे जो आपके यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसमें से जो आपके टोटल बेटे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे अल्टरनेटिंग इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट में से जो टोटल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 1-1 मार्क्स के, वो आएंगे आपके 4 क्वेश्चन. 2 मार्क्स का उसमें से एक क्वेश्चन रहेगा आपका. 3 मार्क्स का जो होगा इसमें भी एक क्वेश्चन रहेगा, पर उस क्वेश्चन में बेटे इंटरनल चॉइस विल बी गिवन फॉर योर क्वेश्चन नंबर. जो आपका 3 मार्क्स का रहेगा एक ही क्वेश्चन रहेगा, पर उसमें आपको इंटरनल चॉइस विल बी गिवन. 4 मार्क्स का उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एज वेल एज अल्टरनेटिंग करंट में से. तो टोटल मार्क्स कितने बन जाएंगे बेटे आपके 9, क्योंकि 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, 4 + 2 कितने हो गए बेटे 6, और 3 मार्क्स का भी आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, तो 6 + 3 9. दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट में से जो टोटल मार्क्स रहेंगे बेटे आपके वो रहेंगे 9 मार्क्स. नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे. 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से. ठीक है, एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का रहेगा. ठीक है, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा. देयर विल बी नो क्वेश्चन रिगार्डिंग द 3 मार्क्स. 3 मार्क्स का उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा. अगेन देयर इज नो क्वेश्चन फॉर द 4 मार्क्स. 4 मार्क्स के लिए भी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा. सो हियर टोटल मार्क्स इज ऑफ 4 मार्क्स.
because two questions are of objective questions, that is of 2 marks, and one question is of 2 marks. 2 plus 2 4. नेक्स्ट ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में से टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आएंगे बेटे दैट इज ऑफ 5 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स. 2 मार्क्स के जो होंगे उसमें 1 क्वेश्चन रहेगा. 3 मार्क्स का भी क्या होगा 1 क्वेश्चन होगा. 4 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन रहेगा, पर इंटरनल चॉइस विल बी गिवन फॉर दिस क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट दैट इज ऑप्टिक्स. टोटल मार्क्स कितना हो गया बेटे 14 मार्क्स हो गया. 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के. 1 क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा, तो 5 प्लस 2 7. 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 7 प्लस 3 10. 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहेगा, तो उसके मार्क्स जो होंगे वो 4 मार्क्स है, तो 10 प्लस 4 कितने हो गए 40. तो ऑप्टिक्स में से जो आपका टोटल मार्क्स का रहेगा बेटे दैट इज ऑफ 14 मार्क्स. नेक्स्ट ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में से आपके टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे. इसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके. 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा इसमें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में से. 3 मार्क्स का उसमें बेटे एक क्वेश्चन रहेगा. 3 मार्क्स का जो होगा उसमें 1 क्वेश्चन होगा. देयर इज 1 क्वेश्चन फ्रॉम द 3 मार्क्स. देयर इज नो क्वेश्चन from the 4 marks. 4 marks में से इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा. So here the total questions are of so here there are total 3 questions from the dual nature of radiation and matter, and the total marks is of 5 marks from this chapter. 2 questions carries 1 marks, that is 2, and 1 question is of 3 marks, that is 3 plus 2 5. So here total comes out to be 5. नेक्स्ट इज योर यूनिट दैट इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई. एंड एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से आपके 1 मार्क्स के जो रहेंगे 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे. 2 मार्क्स के आपके बेटे 2 क्वेश्चंस होंगे. इंटरनल चॉइस विल बी गिवन इन एनी वन ऑफ दीस क्वेश्चंस. दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी जा सकती है. टोटल 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 2 मार्क्स से, पर दोनों क्वेश्चंस में से इंटरनल चॉइस विल बी गिवन इन एनी वन ऑफ द क्वेश्चन. देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम 3 मार्क्स. Again, there is no question from the 4 marks. So total marks is of 6 marks. 2 marks आपके 2 objective questions के हैं, और आपके 4 marks जो हैं वो आपके 2 questions के हैं, तो 4 plus 2 6. Next is your electronic devices. And electronic devices में से आपके 1 marks के जो रहेंगे वो 3 questions रहेंगे. 2 marks का कोई question नहीं होगा. 3 marks का भी कोई question नहीं रहेगा. And 4 marks का जो होगा that is of 1 question. So 3 plus 1 कितने हो गए 4 क्वेश्चंस हो गए. 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस है तो 3 मार्क्स, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स. 4 plus 3 7. तो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से जो आएगा बेटे दैट इज ऑफ 7 मार्क्स. कम्युनिकेशन सिस्टम्स है. कम्युनिकेशन सिस्टम में से बेटे आपके 2 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स. देयर इज नो क्वेश्चन रिगार्डिंग द 2 मार्क्स. Next, there is 1 question regarding the 3 marks. There is no question regarding the 4 marks from the communication systems. That means there are 2 questions from the objective questions, and 1 question is from 3 marks. So here total there are 5 marks. 5 marks total इसके हो जाएंगे बेटे. अब ब्रेकअप ऑफ टोटल 31 क्वेश्चन. टोटल आपके फिजिक्स में बने हैं 31 क्वेश्चंस. देयर आर टोटल 31 क्वेश्चंस इन योर फिजिक्स सब्जेक्ट. अब इसमें ब्रेकअप कैसे करेंगे, ब्रेकडाउन कैसे करेंगे हम टोटल 31 क्वेश्चंस का. तो बेटे 20 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. देयर आर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज योर देयर आर 5 क्वेश्चंस जिसके 2 मार्क्स रहेंगे. देयर आर 4 क्वेश्चंस and these 4 questions are of 3 marks, and 2 questions are of 4 marks. 2 questions आपके 4 marks के रहेंगे, 4 questions आपके 3 marks के रहेंगे, 5 questions आपके 2 marks के रहेंगे, और 20 questions आपके 20 marks के रहेंगे. So 20 multiply by 1, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 marks को कैरी करेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 20. 5 questions आपके 2 marks के रहेंगे, तो 5 into 2 10. नेक्स्ट आपके 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे. ठीक है, सॉरी 4 क्वेश्चंस जो होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे 3 मार्क्स के. सो 4 into 3 12. नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे. 2 into 4 8.
So here 20 plus 10, 30, 30 plus 12, 42, 42 plus 8, 50. So here this is the total distribution of marks regarding your physics subject, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एज वेल एज इंग्लिश सब्जेक्ट। तो बेटे आज का जो हमारा लाइव वीडियो लेक्चर का जो पर्पस था बनाने का वो ये था कि अब सेकेंड टर्म के सभी बच्चों के जो एग्जाम है वो शुरू होने वाले हैं और उस से रिलेटेड हमने हर चैप्टर में से टोटल आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या रहेगा, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या रहेगा और पेपर का जो पैटर्न है वो आपका क्या रहेगा। तो कल के लाइव वीडियो लेक्चर में जो है बेटे वो हम जो आपका बायो सब्जेक्ट रह गया और कंप्यूटर सब्जेक्ट रह गया हम उसके बारे में पेपर का पैटर्न और चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो होगा वो किस तरह से रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स हु ज्वाइन विद अस आवर लाइव एपीएस क्लासेस। और पहले भी मैंने कहा था जो चैनल में बच्चे हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। So once again, good evening to all the